sir, let's start with the big question. In 2026, are exhibitions still valid? Are they still relevant? Oh, yes, of course they are relevant. Exhibition, whether they are happening in UAE or around the world, whether in China, Europe, exhibitions have always believed is a place where people come and network, get to meet their suppliers, buyers, and very important to stay connected. But the reason I asked you this question is because we are slowly moving to a digital world. हर चीज आजकल ऑनलाइन होती है. तो इस डेट में आप फिर भी बिलीव करते हो कि ये ऑफलाइन एग्जीबिशंस की वैल्यू है? Yes, e-commerce and digital marketing is now being seen and heard a lot. Yeah. But I'm an old school person and I've always believed what you can buy in person or what you can interact in person, you can't do this digitally or on social media because it all depends on business to business. Like in our building material business, I can't import or stay connected with my supplier digitally. Yes, maybe in a while I can contact to him on WeChat or a WhatsApp or on Instagram. Yeah. But if I have to see anything new, I unless don't feel the product or see how it has been manufactured, I will never be able to take the call of buying. I will never go digitally. You can sell some products digitally, but have to go to exhibitions. So the amount of investment for setting up a booth in an exhibition is huge, right? Is it always justified? Oh yes, you all know we are taking part in the Canton Fair. Now Canton Fair is an international fair where people from around the world come. Be it Asia, which is India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Afghanistan. From Middle East country, it is UAE, Oman, Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia. Everybody comes. Then Africa, we are talking about East Africa, West Africa. So, and even the America and Europe, or everybody comes. Participating in an exhibition connects you to so many countries from around the world, which you cannot do without participating. Okay, understood. And ये exhibitions में, I'm just curious to know, सबसे ज़्यादा फायदा किस में होता है? Is it in the B2B segments or in the B2C segments? Both. Okay. B2B हो या B2C. It depends आपका धंधा किस साइज पे और किस लेवल का है. Okay. बट दोनों का फायदा होता है बिकॉज B2B आप ट्रेडर्स को बेचते हो और B2C आप रिटेल कस्टमर्स को बेचते हो. तो आप क्या मटेरियल लाते हो आपको सब मिलता है एग्जीबिशंस में. यही है कि आपको सही एग्जीबिशन में जाना है जहाँ पे आपको राइट प्रोडक्ट मिलेगा, वो चाहे B2B या B2C. ओके, बट ज्यादातर जो लोग आते हैं ये एग्जीबिशंस में, फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, आर दे मेनली B2B क्लाइंट्स? नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. अच्छा. बट फॉर मी आई टारगेट मेनली द B2B बिकॉज my business is for building material, which I mentioned, and my customers are the wholesale traders and the developers. So for me, it's mainly B2B. So आपने ये तो मेंशन कर दिया कि एग्जीबिशन में पार्ट लेना जरूरी है. आई एम श्योर एक्सपेंसिव भी है. सो फॉर एंटरप्रेन्योर्स हु आर यंग, स्टार्टिंग फेज में है, जो नहीं अफोर्ड कर सकते बूथ, would you still suggest that they attend it as a participant? Yes, of course. In fact, for any young entrepreneur जो अभी नया बिजनेस शुरू कर रहा है, एग्जीबिशन अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसको नई नई चीजें देखने को मिलती है. नए प्रोडक्ट्स क्या है मार्केट में देखने मिलते हैं, नए सप्लायर्स दिखते हैं. तो जब तक आप जाओगे नहीं, विजिट नहीं करोगे, आपको पता नहीं चलेगा मार्केट में क्या नया आया है और क्या प्राइसेस चल रहे हैं. अगर आप अपने घर पे बैठ के ही काम करोगे तो आपका लेवल जो है ये यहीं रहेगा. आप ऊपर तक, मेरा मतलब है आपका लेवल आप बढ़ा नहीं पाओगे. राइट. सो यू आर सेइंग बेसिकली उनको वहाँ पे ऐसी चीजें देखने मिलेंगी जो शायद उन्होंने सोची भी ना हो. 101%. इट्स अबाउट, जब तक आप पानी में डुबकी नहीं लगाओ आप स्विमिंग नहीं सीखोगे. जब तक आप एग्जीबिशन में नहीं जाओगे आपको पता नहीं चलेगा मार्केट में क्या नया आया है और क्या खत्म हो गया है. राइट. तो ऑन दिस लाइन एक्चुअली, अभी लेट्स से यू जनरली अटेंड द सेकंड फेज ऑफ द कैंटन फेयर. अभी वहाँ पे इतने सारे सेलर्स हैं हु आर बेसिकली ऑफरिंग द सेम थिंग. हाउ डू यू गेट पीपल टू कम टू योर बूथ? वेल, इट्स ऑल अबाउट पार्टिसिपेटिंग रेगुलरली. अगर आप कंसिस्टेंटली पार्टिसिपेट कर रहे हो सकता है कि पहले 2-3 सेशन में क्लाइंट मेरे पास नहीं आए, बट वो जब देखता है कि एक सप्लायर काफी टाइम से है तो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, एक रिलायबिलिटी बिल्ड होती है. सो देन वो बायर जो आपके बूथ पे नहीं आया और वो जो देखता है कि दूसरी भीड़ लगी हुई है आपके बूथ पे, वो डेफिनेटली आके आपसे प्राइस पूछेगा. हो सकता है कि उसी वक्त वो डिसीजन नहीं ले, बिकॉज मैं अभी लास्ट 10 साल से पार्ट ले रहा हूँ और मैंने नोटिस किया है जो 2-3 साल पहले इंक्वायरी करके गया था वो आज मुझे बिजनेस दे रहा है. सो यू नीड टू सो द सीड्स रेगुलरली टू रीप द रिवॉर्ड्स. सो इट्स अ स्लो प्रोसेस. 100%. अगर आप ये सोचोगे कि एग्जीबिशन में आपने पार्ट लिया और आपको इमीडिएटली धंधा मिलेगा तो वो बिल्कुल गलत है.
एग्जीबिशन में आप पार्ट लोगे, आप लीड्स जनरेट करोगे, ग्रेजुअली उसको फॉलो अप करोगे और धीरे धीरे धंधा आएगा. इस लाइक आपने ये प्लांट देखा, ये आपने बीज बो दिया प्लांट का, इस पे पानी डालते रहना है, डालते रहना है, डालते रहना है. इसका मतलब एग्जीबिशन में पार्ट लेते रहना है, रहते रहना है, और आपको एक ना एक दिन उसका फल जरूर मिलेगा अगर आप सही विजन और डायरेक्शन से काम करें. आपके साथ ऐसा हुआ है कि एक क्लाइंट आपको मिल गया वो कैंटन फेयर से एंड ही बिकेम अ रिपीटेड क्लाइंट, या फिर व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल दैट केप्ट कमिंग बैक टू यू आफ्टर बिकमिंग योर क्लाइंट? बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो हमसे रेगुलरली धंधा कर रहे हैं. इनफैक्ट इन दिस अनसर्टेनिटी, जहाँ पे मैं दुबई से शिप नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स है, अफ्रीका में है या एशिया में है, जिनके गुड्स उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं निकलना है. तो वो कस्टमर्स के लिए ये मेरे पास डबल अपॉर्चुनिटी है कि मैं डायरेक्ट एग्जीबिशन के थ्रू उनको माल चाइना से शिप करूं और उनको ना एक्स्ट्रा फ्रेट देना है, ना एक्स्ट्रा कॉस्ट देना है. दे विल पे द सेम प्राइस एज दे वर पेइंग बिफोर, बिकॉज ना फ्रेट बढ़ा है ना रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ा है. कस्टमर वही दाम पे मिलेगा उसको. So sir, just in case कोई potential customers ये वीडियो आज देख रहे हैं, where would they have to come to buy Milano products at the Canton Fair? Well, come to the Milano booth in the second phase of the Canton Fair, and our hall number is 10.1 and our booth number is E23, E24, and you will get the best price from whichever country you're coming from. See you there.